Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. What a wonderful performance, kids. Without making any delay, let's move to the program where we will learn about emotion in the light of Islam with the words of senior section. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this special gathering, you all have made my heart extremely happy. You are thinking that God has been done. All know that today our school children have been blessed with a great pride. The elders also said that it is not for and this distance from Quran and Hadith is created to remind our school children to parents. This argument in the light of Quran and Hadith. It is necessary for you all to be responsible and give a lot of advice and increase their courage. Thank you. How can I bear it? I cannot do anything. Nothing is right in my life. Please. Move aside, everyone. Doctor, I am coming. I am not just an ordinary girl. I am. Oh God, with so many walls pressing and deceitful tactics, how will we weak servants be able to face them? Through all this means our enemies are overpowering us. What should we do now? What I have is very little. What will I achieve with just this? Money, high status, a bungalow, a car, diamond jewelry. All these things should be mine. This is the limit. I don't know from where all these people come. They keep digging all the time and they have no work. They are poor. Bigger. I hate poor. For my own benefit, I can at least do this right. No one will find out. Everything is hidden anyway. Most people lie. Without lies, work does not really get done. You all people have listened what these girls are saying here. People, they are saying here about stress, arrogance, fear, greed, hate, lie. Now, I will try to explain all of these topics in the light of Islam. Now, first, I will tell you about stress. Surah Zuha, ayat number 5. And your Lord is going to give you and you will be satisfying. और अनकरीब तुम्हारा अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे. Now, I will tell you about arrogance. Surah Luqman, ayat number 18. Don't turn your face away from people, not just haughty Allah like the arrogance. और लोगों से बात करते वक्त अपना रुखसान न टेढ़ा करो और जमीन पर रगड़ते हुए ना चलो. बेशक अल्लाह को हर अकड़ने वाला और तकब्बुर करने वाला नापसंद है. Now I will tell you about fear. Surah Anfal, ayat number 30. We planned and I loved that and I realized the best planner. और वो अपनी चालें चलते थे और अल्लाह अपनी खुफिया तदबीरें फरमाता था और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे बेहतर है. Now I will tell you about greed. Surah Takasur, ayat number 1 and 2. The mighty valley for playing upon the worldly things ever and you will in the great. तुम्हें हसरत माल की हवस और फख्र ने आखिरत से गाफिल कर दिया यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंची. Now I will tell you about hate. Surah Zuha, ayat number 10. And ask for the petitioner, do not happen him. सारी कौनों को ना छटको. Now I will tell you about 9. Surah Mulk, ayat number 30. He knows well what was in the heart. बेशक वो जानने वाला है सीनों में छुपे भेद को. Glory to be Allah. It's a great blessing from Allah that He has gifted us Quran, which is only guidance for us to stay on the right path and enlighten our thoughts. All praise is due to Allah. Alhamdulillah, you are on the path of guidance for those who strive for excellence. Allah has given great readings in the Quran. I am telling you in Surah Luqman, ayat number 8. Indeed, those who believe and do good deeds, for them are guidance of bliss. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जब दीन दिल में जिंदा होता है, जब दीन दिल में जिंदा होता है, तो इंसान का हर अमल खूबसूरत होता है. What you just witnessed was not just a play. It was a reminder, a mirror of our lives. The message is clear. When we walk away from Deen, we lost direction. And when we return to Deen, we find peace. दीन से रोशनी मिलती है, दिल का हर गम छुप जाता है, सब्र से हर मुश्किल हल होती है, सब्र से हर मुश्किल हल होती है, अल्लाह का भरोसा साथ रहता है.
जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग भाई? आवाज ही नहीं आ रही बच्चों। तवज्जो चाहूंगा मैं आप लोगों की। चलिए, पहले तो मैं मतलब इस चीज का यहाँ प्रोग्राम में मुझे अंदाजा नहीं था कि प्रोग्राम इतना खूबसूरत होने वाला है। यहाँ पे देख के मैंने जब पहुंचा और स्कूल का बेटा किस ईयर में फाउंडेशन हुआ है? 2009। तो 2009 में स्कूल का फाउंडेशन हुआ है। मैं यहाँ पढ़ रहा था इस चीज को। तो पहले तो यार स्कूल के जो मैनेजर है जो स्कूल को रन कर रहे हैं, ये पूरी टीम को मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत मतलब शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उन्होंने कौम के लिए इतना सोचा। क्योंकि मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे लहरपुर एक जगह है, तो वहां पे हमारी टीम गई थी। तो वहां पे भी नर्सिंग कॉलेज के लिए किसी साहब ने पूरी बिल्डिंग बनाई। तो उनसे बात हो रही थी, उसने कहता है कि बिल्डिंग बना दी है, लेकिन जो कौम है उनका कुछ पर्दे का इंटरेस्ट नहीं है। बैठे हुए बात हो रही थी, तो बोल रहे थे कि अभी यहाँ पे आसपास लोगों का रुझान अपनी कम्युनिटी का, उनको बोलो यार कि पेट्रोल पंप खोलना है, बरातघर बनाना है, हाँ तो बताओ कितने पैसे लगेंगे, खोल देंगे। लेकिन ये अगर स्कूल की बात करो, पढ़ाने की बात करो, तो वहां पे साइलेंस, वहां पे सन्नाटा छा जाता था। तो मतलब मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। और मैं मतलब मुझे अच्छा भी लग रहा है क्या कि 2009 में स्कूल के बारे में आप लोगों ने सोचा, और इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस देख के मुझे बच्चों का अच्छा लग रहा है। अगर मैं सच में अपने बारे में बात करूं तो मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और जितनी क्लासेस के बच्चे, ये 4th 5th क्लास वाले बच्चे जो इंग्लिश बोल रहे थे, तो अगर मैं अपना वक्त याद करूं तो शायद मैं इतनी अच्छी अंग्रेजी मुझे उस जमाने में नहीं आती थी, शायद अब भी नहीं आती होगी जो बच्चे अब बोल रहे हैं। चलिए खैर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग भी प्रोग्राम में थक गए होंगे। हाँ, तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था थोड़ा सा, और उसमें मतलब उसमें अगर मैंने 6-7 बच्चों से बात करी जो 8th 9th 10th वाले बच्चे हैं कि बच्चों क्या बनना चाह रहे हो आप, तो ज्यादातर बेटियों का जवाब ये था कि डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। और क्योंकि मैं नीट की तैयारी कराता हूँ पिछले 26-27 साल से, इत्तेफाक की बात है कि अभी मैं यहाँ के प्रोग्राम में आया, तो एक बच्चा जो है उसने मतलब कभी मैंने कोटा में उसको पढ़ाया था, तो उसने पहचाना मुझे। उसने क्या था कि ठीक है कि मैं भी हाँ देखिए वो शायद स्कूल ओनर में है, और माशाल्लाह इन्होंने पीजी भी कर लिया है। अभी एमसीएच के लिए मतलब एडमिशन की तैयारी है इनकी, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है कि मैं डॉक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं एक तो ये बोलता हूँ कि उसने कैसे जैसे किसी बच्चे ने बायोलॉजी ली, तो मैं ये बोलता हूँ यार किसी बच्चे से बात करता हूँ करके, यार ये आपकी किस क्लास का प्लान है, कि 8th का प्लान है, 9th का प्लान है, मेरे माँ बाप का मोटिवेशन है, मेरे उनका ड्रीम है। तो मैं एक तो ये बात बोलता हूँ यार कि ये आप लोगों का प्लान नहीं है। मैं इसको साबित कर सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो है अल्लाह ने आपको इस बेहतरीन काम के लिए चुना है, और ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि आपको डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने मतलब उसके दिमाग में है उसने कि ठीक है बच्चों को बायोलॉजी दिलवानी है, इनको नीट की तैयारी करानी है। तो एक तो ये कि डॉक्टरी की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर मतलब उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, माँ बाप भी बैठे हैं, उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस छोटी सी बात है। तो ऐसे ही मतलब जो डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, डॉक्टर बसंत साहब है हमारे साथ यहाँ पे प्रोग्राम में, और पीजीआई में पीडियाट्रिक सर्जरी के हेड हैं। बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, अगर आप इस चीज को फील कर पाओ, अगर आप इसको सोच पाओ। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट कोटा की बात करूं, और आप इमेजिन करो कि आपका अगर बिजली गायब हो जाए, 4 दिन तक बिजली ना आए, हाँ तो आप 4 दिन बिजली ना आए, वो सिचुएशन को सोचो कैसा होगा। या फिर 5-6 दिन आपके लिए पानी की सप्लाई बंद हो जाए, तो इमेजिन करिए कैसा आपको लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको पूछूंगा कि बिजली डिपार्टमेंट का हेड है, इसका जिले का हेड कौन है, शायद आप नाम ना बता पाए। मैं आपसे पूछूं, उसने कहता है जो पानी सप्लाई कर रहा है, हाँ वो पूरे जिले का हेड कौन है, आप शायद नाम ना बता पाए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, उसने कहता है अपने इलाके के चंद डॉक्टर के नाम बताओ, तो हो सकता है आप हाँ कुछ डॉक्टर के नाम मुझे डेफिनेटली बता दोगे, हाँ और उनकी क्वालिटी भी बता दोगे। तो डॉक्टर्स का रुतबा या फिर डॉक्टर्स का प्रेस्टीज, मतलब पैसा तो दुनिया में बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन जो इज्जत भी है और बाकी और चीजें भी हैं। बल्कि एक और बात थी, अगर मैं बताऊं आपको, कैसे ही मेरा स्टूडेंट एएफएमसी, अगर आप लोगों ने सुन रखा हो, पुणे में एक मेडिकल कॉलेज है, तो बच्चे जैसे कॉलेज से आके बात करते हैं, बताते हैं, तो उन्होंने बोला कि अब तो अबुल कलाम साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो एएफएमसी वाले गेस्ट बुलाते थे हर साल,
तो जिस टाइम मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा था उन्होंने बोला, उसने कहता है कि अबुल कलाम साहब वहां पे थे, चीफ गेस्ट बुलाए गए थे और उनसे बच्चों ने पूछा कि आपकी जिंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहा होगा। तो शायद जो अब्दुल कलाम साहब की जिंदगी के बारे में पढ़ रखा है जानते होंगे, क्योंकि पोखरण टेस्ट से लेके और अग्नि मिसाइल तक जो है उनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं, बच्चों से बेहद प्यार करते थे। तो लोगों का जवाब शायद यार के प्रेसिडेंट बने होंगे तो शायद उनके लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट वो रहा होगा, या किसी ने बोला होता है कहते हैं पोखरण टेस्ट वाली टीम में थे तो शायद वो हैप्पीएस्ट मोमेंट रहा होगा, या फिर ये कि जब न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हो गया या अग्नि मिसाइल लॉन्च कर दी, ये सब कंट्रीब्यूशन थे इंडिया के लिए, उनके लिए शायद वो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट रहा होगा। ये सब तो उन्होंने ऐसा कुछ भी जवाब नहीं दिया कि उसने कि मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट था। उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई बच्चों को। उन्होंने बोला कि यार कि मेरा कोई फ्रेंड था, उनका कोई डॉक्टर दोस्त था, और जब वो अग्नि मिसाइल के ऊपर काम कर रहे थे तो लैब में उनके पास जैसे दोस्त एक दूसरे से मिलने आ जाते हैं, तो कलाम साहब के पास उनका दोस्त आया कभी विजिट करने के लिए, और कलाम साहब उस टाइम कार्बन फाइबर के ऊपर काम कर रहे थे। जो बच्चे यहाँ पे साइंस पढ़ते होंगे उनको पता होगा कार्बन फाइबर का मतलब ये कि प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है, लेकिन उसकी मजबूती स्टील से भी ज्यादा होती है और वजन उसका बहुत कम होता है। जैसे फार्मूला रेसेस कार होती है, फिर ये BMW ऑडी कार जो है, इनमें भी वो प्लास्टिक बॉडी जो है वो कार्बन फाइबर ही लगता है बेसिकली, या फिर स्पोर्ट्स बाइक वगैरह उनमें कार्बन फाइबर लगता है। तो खैर हल्की और मजबूत से आप समझ गए होंगे कि अग्नि मिसाइल के ऊपर जो वो काम कर रहे थे, तो कार्बन फाइबर लगाने का पर्पज ये क्या कि अगर मिसाइल का वेट कम हो जाएगा तो ज्यादा दूर तक मार करेगी। बात यहाँ पे कुछ थी, उन्होंने बताया खत्म सी हो गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो जो डॉक्टर साहब थे वो पोलियो के पेशेंट जो बच्चे हुआ करते थे उनके लिए कोई क्लिनिक चलाया करते थे, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाया करते थे। तो उन्होंने कलाम साहब को बुलाया, उसने कैसा है कि आप आइए मेरे पास कभी जब आपके पास छुट्टी हो, कुछ वक्त हो। अब दोस्त के इन्विटेशन पे कलाम साहब उनके पास गए। तो कलाम साहब जब उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने डॉक्टर का जो अरेंजमेंट था बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, खेलने कूदने के लिए अरेंजमेंट कर रखा था, लेकिन बच्चे उस खेलने कूदने में इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब से, मतलब कलाम साहब ने पूछा डॉक्टर साहब से कि भाई इतना अच्छा अरेंजमेंट है आपका, फिर भी बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो उन्होंने बच्चों की जो बैसाखी थी उसको मंगाया और कलाम साहब ने हाथ में दिया। तो कलाम साहब ने जब बैसाखी हाथ में ली थी तो उन्हें लगा कि इसका वजन बहुत ज्यादा है, बच्चों का वजन भी इतना नहीं है, मतलब तो उन्हें थोड़ा लगा। थोड़ी स्टोरी आपके आगे समझ में आ रही होगी। तो कार्बन फाइबर क्योंकि हल्का होता है, तो कलाम साहब ने क्या किया, अपने पर्सनल एफर्ट से कुछ बैसाखी कार्बन फाइबर की बनवाई और डॉक्टर साहब के पास भेज दी कि मेरी तरफ से बच्चों को दे देना। अब बच्चों को जब देने का वक्त आया तो उन्होंने बोला कि ठीक है कि आपने बनवा दिया, आपने बोल दिया, लेकिन आप आ जाइए, अगर आप ही दोगे तो हमें अच्छा लगेगा। छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, बच्चे बुलाए गए और कलाम साहब को बुलाया गया। कलाम साहब ने बैसाखी देनी शुरू करी, बच्चों के हाथ में नई बैसाखी, बिल्कुल हल्की सी बैसाखी आई, पहले भारी भरकम हुआ करती थी। तो बच्चों के चेहरे की हंसी जो है वो एकदम से, मतलब चेहरे पे स्माइल आई। तो कलाम साहब ने बच्चों को ये बताया कि कैसे कि मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट वो था कि जब मैंने उन बच्चों के चेहरे पे हंसी देखी, मुस्कुराहट देखी। तो बात को मुख्तसर करता हूं, कहने का मतलब ये देखिए कि वो तो कलाम साहब की लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट था, लेकिन अगर मैं एक डॉक्टर की जिंदगी की बात करूं तो उसका मोमेंट नहीं, उसकी पूरी जिंदगी हैप्पीएस्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं बैठा डॉक्टर हसन साहब से बात करता कि इन्होंने, क्योंकि पीडियाट्रिक सर्जरी बच्चों से ताल्लुक है, बच्चों की सर्जरी करते हैं, मतलब हजारों बच्चों की जिंदगी इन्होंने बचाई है। जिंदगी बचाने वाला अल्लाह है, लेकिन जरिया तो कोई ना कोई बनता ही है ना, डॉक्टर भी जरिया बनते हैं। और मतलब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कितना ही बीमार होकर जा रहे हो, शदीद बीमारी से जा रहे हो, लेकिन वो कहेगा अरे ठीक हो जाओगे यार, उसका इतना ही बोलना जो है हमारी आधी बीमारी ठीक कर देता है। रात में दर्द हो रहा है, पता लग रहा है कि ठीक है, उस डॉक्टर ने यार आपको कुछ नींद की इंजेक्शन दे दिया, आपको पेन किलर दे दिया, लेकिन ये सुबह तक आप रिलीफ फील कर रहे हो तो आप डॉक्टर के हाथ जोड़ोगे ना भाई। तो खैर वैसे तो सारी प्रोफेशन जरूरी है, और क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स भी मौजूद हैं तो उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ा सा उनको भी बताना चाहूंगा कि जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना यहाँ पे, छठी बच्चे, मतलब 5th 6th 7th 8th के और उससे छोटी क्लास के बच्चे, तो अक्सर होता ही है कि हमारे से यहाँ छोटी छोटी गलती होती है जो आगे जाके ज्यादा बड़ी हो जाती है और फिर चीजें हमारे हाथ से निकल जाती है। मसलन किसी बच्चे के 5th क्लास में मैथमेटिक्स में 100 में से 50 नंबर आए, वो छठी क्लास में चला गया। लेकिन अगर आप इस बात को समझो कि इसका मतलब ये, उसको जो 5वीं क्लास का जो सिलेबस था
उसको 50 नंबर की मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। हाँ, इसीलिए उसके 50 नंबर नहीं आए और 50 आ गए। 50 का कॉन्सेप्ट आता था लेकिन 50 का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। अब वो छठी क्लास में तो आ गया, लेकिन आप ये सोचो वो जो 50% मैथमेटिक्स उसको 5वीं क्लास की नहीं आती थी, अब उसका जो एप्लीकेशन छठी क्लास में आना है, तो इसका मतलब है छठी क्लास में भी हाँ उससे वो सवाल नहीं हो पाएंगे जो उसके 5वीं क्लास के सिलेबस के ऊपर बेस्ड थे। तो अब ये क्या होगा, छठी क्लास में भी उसका ये बैकलॉग 50% 5वीं क्लास का था, वो 30-40% छठी क्लास में आ गया, फिर वो 7वीं क्लास में। और होता ही है कि अक्सर ये ही जो गैप है वो 9th 10th तक आते आते इतना हो जाता है कि 9th 10th में आते आते बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ते हुए डर लगने लगता है। सबका माँ बाप का ड्रीम ये होता है कि बच्चा साइंस ले, हाँ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन उसके हाथ से मैथमेटिक्स निकल चुका होता है, उसके हाथ से साइंस निकल चुका होता है। और इवन ये कि कोई जरूरी नहीं कि उससे कहते हैं सबको साइंस की पढ़ाई करेंगे तभी कामयाब बनेंगे। अगर मैं कॉमर्स भी आज की डेट में काफी एप्लीकेशन में आ रहा है, लेकिन कॉमर्स भी अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहे हैं, वैसे यहाँ पे किसने बोला नहीं, हाँ लेकिन उसमें भी अकाउंटेंसी है, स्टैटिस्टिक्स है, वहां पे भी मैथमेटिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है और उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि मैथमेटिक्स को दोस्त बनाइए, उससे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो टीचर्स है मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है हाँ कि अगर छठी 7वीं 8वीं में और सबसे इंपॉर्टेंट जो ईयर होता है वो छठी 7वीं 8वीं के फाउंडेशन ईयर होते हैं, अगर यहाँ पे मैथ्स और साइंस का बैकग्राउंड खराब हो जाता है तो फिर दुश्वारी हो जाती है। मतलब यहाँ पे आप फिजिक्स 6, 7th 8th की अगर बात करें, मैथ्स पढ़ाइए बच्चों को अच्छे से, साइंस पढ़ाइए और इंग्लिश इनकी अच्छी करा दीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी में कभी परेशान नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कामयाब हो ही जाएंगे। और बात को मुख्तसर करते हैं, बस मैं यही बोलूंगा कि जो बच्चे थे इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, मतलब ये तो बहुत ही अमेजिंग था। मैं उम्मीद नहीं करता कि छोटी जगह में इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। और बाकी है कि मतलब सर सैयद साहब तो कमाल करके गई है, तो ये जो आफ्ताब इंटर कॉलेज या फिर कल को मैं दुआ करूंगा कि यहाँ डिग्री कॉलेज बने, कल को यहाँ यूनिवर्सिटी बने, आप लोग जो लगे हुए हैं, और यहाँ से ऐसे ही बेहतरीन बच्चे निकले जो खाली डॉक्टर इंजीनियर ना बने, हाँ बल्कि एंटरप्रेन्योर बने, जो आगे जाके ऐसे 150 और स्कूल खोलें, हाँ और ऐसे और 150 अब्दुल कलाम तैयार करें, ऐसे डॉक्टर आफ्ताब या फिर और बाकी डॉक्टर इंजीनियर तैयार करें। शुक्रिया बहुत बहुत।